Hello, my lovely students. How are you all? I hope you all are doing very well. So, today in this video, we are going to discuss the exercise of the chapter 1 Finding the Fairy Cat from your joyful mathematics textbook. But before that, if you haven't completed the explanation part of this poem, so please firstly watch my previous video, then come here. Okay, students, now let's start the exercise. So, the first question is look at the pictures of the poem and encircle the correct word. It means आपको पिक्चर देखनी है पोयम में और स्टेटमेंट पढ़ना है जो आपका क्वेश्चन का है और उस अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है. So the question is the red ball is above, under, on the bed. रेड बॉल कहाँ पर है वो हमें देखना है. So we have to see the picture. Okay, this is the bed and this is the red ball. So red ball under the bed है. Okay बच्चों, under का मतलब मैंने आपको मेरी previous video में बताया है. So if you haven't watched that video, then please firstly watch that video, then come here. I have provided the link in my description box. So we will circle on the under word. Now let's move to the B part. The cat is inside, outside, on the car. Let's see the picture. Okay, हमारी cat कार के ऊपर बैठी है और कार को टच भी कर रही है. तो इस टाइम अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर बैठी है और उसको टच भी कर रही है तो हम क्या यूज करते थे? On. Very good बच्चों. So the correct answer is on. You have to circle on the word on. The C part is the man is lying under, inside, on the tree. Let's see the picture. Okay, this is the tree and here we can see the man sleeping under it. Okay, so पेड़ के नीचे सो रहा है man, right? So what we use in that case? We use under. Very good. So we will circle the word under. D part is the cow is inside, top of, outside the house. Let's see the picture. Okay, जो हमारी काऊ है घर के आउटसाइड है, राइट बच्चों? घर के बाहर है, इसका मतलब आउटसाइड. So we will circle the word outside. Okay, now we have to move to the next part. Think and answer. आपको पहले सोचना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, then answer करना है. Okay बच्चों? So the A part is where do you put your shoes? Inside, outside the room. Okay. आप आपके शूज आपके रूम के अंदर रखते हो या रूम के बाहर रखते हो? देखो, जैसे ये एक बच्चा है आप लोगों की तरह, ये अपने रूम के डोर पे खड़ा है, तो रूम के डोर के अंदर वाला पार्ट होगा इनसाइड, राइट बच्चों? और डोर के बाहर वाला पार्ट होगा आउटसाइड. और आप बताओ, आप अपने शूज कहाँ रखते हो? रूम के बाहर, मतलब आउटसाइड. वेरी गुड. सो हम सर्कल करेंगे वर्ड आउटसाइड को. लेट्स सी द बी पार्ट. वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज? इनसाइड, आउटसाइड द डस्टबिन. आप गार्बेज कहाँ फेंकते हो डस्टबिन में? डस्टबिन के अंदर या डस्टबिन के बाहर? तो आप बताओ बच्चों मुझे. ऑब्वियसली डस्टबिन के अंदर. जो डस्टबिन के बाहर फेंकता है वो होता है बैड बॉय या बैड गर्ल. ओके बच्चों, चलो लेट्स सी दिस क्यूट लिटिल किड. व्हाट ही इज डूइंग? ही हैज अ गार्बेज इन हिज हैंड. ओके, ओह नाइस. ओके, उसने अपना गार्बेज डस्टबिन के अंदर फेंका, इनसाइड द डस्टबिन. सो ही इज अ गुड बॉय. नाउ लेट्स सी द अदर एग्जांपल. Oh, he's throwing the garbage outside the dustbin. Outside the dustbin. Okay, then he's a bad boy. So, students, you are good girl, bad girl? You're good boy, bad boy. You are good, na? So, you have to throw the garbage
inside the dustbin. So we will circle the word inside. Very good. Now let's move to the next part of the exercise. Let us play find the things. वाओ, ये एक गेम है बच्चों जिसमें आपको चीजें ढूंढनी है. कोई भी गेम खेलने के लिए सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए, राइट? सो लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन. Children can divide themselves into two teams. One team will hide a few things like white chalk, red ball, and other items and ask the other team to find them. Children can give verbal instructions to find the things using positional words like inside, outside, far, near, above, below, etc. ओके बच्चों, इंस्ट्रक्शंस अब मैं आपको समझाती हूँ. इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप लोगों को टीम में खेलना है, तो आप ये अकेले नहीं खेल सकते. आपको अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ खेलना होगा. तो 2 टीम्स में आपको डिवाइड होना होगा, टीम ए एंड टीम बी. सो टीम ए कुछ चीजों को हाइड करेगी, मतलब कुछ चीजों को छुपाएगी, जैसे कि चौक छुपा दिया, रेड बॉल छुपा दी, आपने अपना टिफिन बॉक्स छुपा दिया. ऐसी तरह की कोई चीज आपको छुपानी है. टीम ए कोई चीजें छुपाएंगी, टीम बी को नहीं बताएगी. फिर टीम बी वो चीजें ढूंढेगी. टीम बी कैसे ढूंढेंगी वो चीजें? उसके लिए टीम ए कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगी पोजिशनल वर्ड्स यूज करके. इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, अबव, बिलो. अब हमने पढ़ा है ना बच्चों ये सारे वर्ड्स, तो इनका यूज करके टीम ए कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगी. बोल सकती है लुक फॉर व्हाइट थिंग विच इज हिडन नियर द बोर्ड अंडर द टेबल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टीम ए टीम बी को हिंट दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप ऐसी कोई व्हाइट कलर की चीज ढूंढो जो मेरे बोर्ड के पास है और टेबल के नीचे है. ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको गेम खेलना है. और नियर मैंने जो वर्ड यूज करा, आप सोच रहे होगे अरे मैम नियर का मतलब क्या है? ओके, नियर का मतलब समझते हैं बच्चों. नियर का मतलब होता है पास में. ओके, कोई चीज अगर पास में है तो उसको बोलेंगे हम नियर. नियर मीन क्लोज टू समथिंग. ओके, पास में. ओके बच्चों, अब हम ये गेम आप अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ खेलना, लेकिन आप अभी मेरे साथ खेलो. मैं टीम ए हूं और आप सबकी टीम बी है, तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी और आपको वो चीजें यहाँ से ढूंढनी होंगी. ये आपका क्लासरूम है बच्चों, ठीक है? ये क्लासरूम बनाया है मैंने, कुछ चीजें हैं और यहाँ पे मैंने चीजें छुपाई हैं. मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी और आपको यहाँ से चीजें ढूंढनी होंगी. सो लेट्स सी द इंस्ट्रक्शंस. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लुक फॉर ब्लू थिंग विच इज अबव द ब्लैक बोर्ड. ओके, इसका मतलब क्या है टीचर? इसका मतलब है आपको ब्लू कलर की ऐसी कोई चीज ढूंढनी है जो कि ब्लैक बोर्ड के अबव हो. अबव का मतलब ब्लैक बोर्ड से ऊपर हो, ऊपर, ठीक है? अबव द ब्लैक बोर्ड से ऊपर हो कोई ब्लू कलर की थिंग. चलो बच्चों ढूंढते हैं. ब्लैक बोर्ड तो ये है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिख गया, ये रहा है ना बच्चों, तो उसको सर्कल कर दो. वेरी गुड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको ब्लू कलर की थिंग दिख गई और आपने सर्कल कर दिया. वेरी गुड. नाउ लेट्स सी द सेकंड इंस्ट्रक्शन. लुक फॉर ब्लू थिंग विच इज बिलो द ब्लैक बोर्ड एंड नियर टू द डेस्क. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको ऐसी ब्लू चीज ढूंढनी है जो कि बिलो द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड के नीचे. ओके, ब्लैक बोर्ड के नीचे, बिलो मतलब नीचे, एंड नियर टू डेस्क. नियर मैंने बताया था पास में डेस्क के हो, मतलब ब्लू कलर की ऐसी चीज आप ढूंढो जो ब्लैक बोर्ड के नीचे हो और डेस्क के पास में हो. तो चलिए ढूंढते हैं. ब्लैक बोर्ड के नीचे डेस्क के पास ब्लू कलर की थिंग, ये रही. वेरी गुड बच्चों, you guys are very smart, I must say. So you have to circle that blue thing. Very good. Now let's see the third instruction. Look for red thing which is under the chair and near to the pencil. अब इसका मतलब क्या है? आपको रेड थिंग ढूंढनी है जो कि चेयर के नीचे है, अंडर द चेयर. ओके, चेयर के नीचे है एंड नियर टू द पेंसिल, और पेंसिल के पास में है. तो चलो ढूंढते हैं. ये देखो हमें चेयर दिख रही है बच्चों. चेयर के नीचे तो ये रेड बॉल है, रेड थिंग है, और पेंसिल के भी पास है. वेरी गुड. सो दिस we have find it. So let's circle it.
Very good. Now let's move to the fourth instruction. Look for yellow thing which is on the table near to the boy. It means कोई येलो कलर की चीज जो कि टेबल के ऊपर हो. ऑन मतलब ऊपर हो. एंड नियर टू द बॉय. नियर मतलब बॉय के पास में हो. So let's see. We can see it clearly. Yes. देखो बच्चों, ये पेंसिल है येलो कलर की, टेबल के ऊपर है एंड बॉय के नियर है, बॉय के पास है. तो circle this pencil. Very good. Now let's move to the fifth instruction. Look for white thing which is inside the bag. व्हाइट कलर की चीज ढूंढो जो कि बैग के अंदर है. यहाँ हमें बैग दिख रहा है बच्चों. Yes, very good. You guys are very intelligent. हमें बैग दिख रहा है प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के साथ. This pink bag, लेकिन inside बोला है white thing जो कि बैग के inside हो. So we can't unzip the bag without her permission, right? But we have found our thing. So we can circle the bag. बैग के अंदर कुछ चीज होगी, लेकिन हम बिना परमिशन के नहीं खोल सकते किसी का बैग. ओके बच्चों? Okay, बच्चों, very good. Now let's move to the next part of the exercise. Let us play throw the ball. Wow, again new game. इसका मतलब है आओ हम खेले थ्रो द बॉल गेम. बॉल को फेंकने का गेम. थ्रो मतलब फेंकना. आप लोग बॉल के साथ खेलते होगे ना, एक दूसरे को पास करते होगे. थ्रोइंग द बॉल. थ्रो मतलब फेंकना. तो कोई भी गेम खेलने के लिए हमें क्या पढ़ने होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन. वेरी गुड. सो लेट्स सी इट्स इंस्ट्रक्शन. Each child aims and throws the ball inside the basket. When the ball goes inside, other children will say in. And when it goes outside the basket, they say out. बच्चों, इसका मतलब है कि आप लोग ये गेम अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ खेलोगे और आप लोग ट्राई करोगे. यू हैव टू एम कि आपका जो बॉल है ना वो बास्केट के अंदर जाए. ओके. अगर वो बास्केट के अंदर जाता है उसका मतलब है इनसाइड. अगर वो अंदर जाएगा उसका मतलब क्या है बच्चों? इनसाइड. वेरी गुड. जब वो इन जाएगा तो आपकी बाकी सारी फ्रेंड्स बोलेंगे इन इन. ओके. और अगर वो बास्केट के अंदर ना जाके बाहर जाएगा, आउटसाइड ऑफ बास्केट जाएगा, तो आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? आउट आउट. यस बच्चों, वेरी गुड. सो बच्चों, इन एंड आउट आप लोगों को बोलना है. आपके जो फ्रेंड्स से खेल रहे होंगे आपको इन एंड आउट बोलना है. इन एंड आउट का मतलब आप समझ गए हैं. इन मतलब इनसाइड, आउट मतलब आउटसाइड. ओके बच्चों. तो ये गेम आप अपने फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ खेलना, लेकिन अभी हम यहाँ पर भी खेलेंगे. तो प्लीज आप अपनी स्क्रीन पे ही देखते रहो, हम एक गेम खेलेंगे अब. वाओ, देखो बच्चों, इधर बहुत सारे बच्चे हैं आप लोगों की तरह. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. वाओ. एंड देखो बच्चों, जिसके हाथ में बॉल है उस बच्चे का नाम है राहुल. So Rahul will throw the ball, okay? And we have to decide whether it is in or out the basket, okay? So Rahul, please, can you please throw the ball for us? Okay, teacher. Oh, he's throwing. Oh, wow, it goes inside the basket. So students, tell me, position, in or out? In? Very good. We will use the word in because it is inside the basket. Let's see what his friends are saying. Oh wow, they are also saying in. Very good. Now it's a chance for Rohit. Rohit will throw the ball now. Let's see. Okay. Oh, his ball is outside the basket. So what we will say? We will say out. Yes, out. Very good बच्चों. हमने ये गेम खेल ली, बहुत मजा आया. Now let's move to the next part of the exercise. Okay, let's see the question. Pick the things which are inside. Okay बच्चों, inside outside आपको पता है ना? Inside मतलब जो अंदर हो, outside मतलब जो बाहर हो. So आप ये फर्स्ट पिक्चर देखो. ये बास्केट है. बास्केट के अंदर फ्लावर्स हैं और बास्केट के कुछ बाहर भी फ्लावर्स हैं. तो हमें तो इनसाइड वाले पे टिक करना है. तो हम किस पे टिक करेंगे? इस पे.
बास्केट के अंदर, इनसाइड है, तो हम टिक कर देंगे। वेरी गुड। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, इनसाइड वाले पे क्लिक करना है, याद रखना। देखो ये कार है, कार के अंदर एक प्यारी बच्ची बैठी है और कार के बाहर उसके पापा खड़े हैं। सो व्हाट वी कैन से, अ गर्ल इज सिटिंग इनसाइड अ कार and her father is outside the car. So, we will tick on the girl because she is inside the car. Now let's move to the B part. Tick the things which are outside. Okay बच्चों, outside मतलब बाहर, right? So, here we can see two bears. One is inside his den and the second is outside the den. So, we will tick on the outside bear. So we will take on the bear who is outside, right? Okay, now look here. There are some toys which are inside the box and there are some toys which are outside. So we will click on the outside part. Yes, very good. Now let's move to the C part. Look at the picture and tick the correct words. ओके आपको पिक्चर को देखना है, स्टेटमेंट पढ़नी है एंड उस अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। ओके बच्चों, सो द फर्स्ट पार्ट इज अ बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री। देखो बच्चों, आपको ये बॉय दिख रहा है, ये ट्री के ऊपर तो नहीं बैठा है, ऑन का मतलब होता है ऊपर बैठना, ट्री के अंडर है, सो वी विल टिक द अंडर। ओके बच्चों, yes, we have encircled the word under. Now let's move to the second part. Birds are on under the tree. Birds कहाँ पर है? Let's see. ये देखो birds. Birds तो बैठी है पेड़ के ऊपर, अंडर तो नहीं है, on यूज करेंगे, ऊपर बैठी है पेड़ के, तो we will circle the word on. Very good students. Now let's move to the D part. Draw a smile below the nose and eyebrows above the eyes. Let's read it again. Draw a smile below the nose. Nose है बच्चों, ये nose के नीचे smile draw करनी है. And eyebrows above the eyes. Eyes के ऊपर eyebrows draw करनी है. Okay बच्चों. Smile and eyebrows. ये दोनों चीजें हमें draw करनी है. So बच्चों, take out your pencil and draw with me on your book. Okay बच्चों? Yes, we have drawn the smile. Okay बच्चों, you have to do the same on your book. Now let's draw eyebrows. Yay! You have to do the same, students. Very good. Now our cartoon is looking very cute. Clap for yourself. Great. Now let's move to the next part of the exercise. Okay, what it is written? Look at our national flag, which is also known as Tiranga. How many colors are there? Okay, अब हमें नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब बोला गया है नेशनल फ्लैग को बोलते हैं तिरंगा। नेशनल फ्लैग होता है बच्चों, ये आप लोगों ने देखा होगा। अब इसको तिरंगा क्यों बोलते हैं? तिरंगा मतलब 3 कलर्स। इट इज मेड अप ऑफ 3 कलर्स बच्चों। वो आपको दिख रहा है 3 कलर्स। अब इन कलर्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से कलर्स हैं। देखो सबसे पहला है सैफ्रॉन। ये जो सबसे टॉप पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं सैफ्रॉन। रिपीट विथ मी, सैफ्रॉन। वेरी गुड। नाउ द सेकंड कलर इज व्हाइट। रिपीट, white. Nice. Now the last color, third color is green. Repeat, green. So what are the 3 colors of the flag? Saffron, white, green. Repeat with me. Saffron, white, green. Yes, very good. And you can see this part. You can see this part? Yes, this is known as Ashoka Chakra. Say it aloud. Ashoka Chakra. One more time. Ashoka Chakra. Very good. So 3 colors of the flag are saffron, white, green. And in the middle of the flag there is Ashoka Chakra.
Okay, students, now let's answer the questions. So the first question is, which color is at the top of Tiranga? We just have seen. What is that color? Saffron. It is on the top of Tiranga. Top मतलब किसी भी चीज का सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं टॉप. टॉप आपने पढ़ा है पुरानी वाली वीडियो में, राइट? तो सैफ्रॉन होगा. सो सर्कल ऑन द वर्ड सैफ्रॉन. Okay, बच्चों, now let's move to the second part. Which color is below the white color on the तिरंगा? Okay, white color देख लेते हैं अब हम. Which color is below the white color? ये आपको white है, below मतलब नीचे. नीचे क्या है बच्चों? ग्रीन है, राइट? तो हम ग्रीन पे सर्कल कर देंगे. वेरी गुड. Now, which color is above the green color on Tiranga? Here you can see in the picture, बच्चों. ग्रीन के ऊपर है white, राइट बच्चों? ग्रीन के ऊपर है white. So, circle on the word white. Great. So, let's move to the fourth part. Where is Ashoka Chakra? Study that. It is in the middle. You can see here. Right? See this? So, circle on the word in the middle. Very good, bachcho. Awesome, students. Give yourself a huge clap. Yes, very good. I hope you have understand this exercise clearly. If not, then you have to watch this video again and again. Okay, students? And we will do the rest of the exercise in our next video. Until then, bye-bye. Take care.